سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ بھارت نے پہلگام واقعے کو جواز بنا کر ہم پر حملہ کیا۔ ہم نے بھارت کو پہلگام واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کی۔ دشمن نے ہماری پیشکش کا مثبت جواب نہ دیا۔ جو بات مذاکرات کی میز پر ہونی تھی وہ میدان جنگ میں طے کرنے کا فیصلہ کیا۔ شاہینوں نے چند ہی منٹوں میں بھارتی فوج کی توپوں کو ایسا خاموش کیا کہ تاریخ ہمیشہ دشمن کے رافیل ہمارے شاہینوں کے نشانے پر آئے اور فیل ہو گئے۔ پاک فوج کے جوانوں نے دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا۔ قوم سے خطاب کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ اس تاریخی کامیابی پر مسلح افواج کے سربراہان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہم نے ذمہ دار ریاست کے طور پر جنگ بندی کی تجویز کا مثبت جواب دیا۔ آبی وسائل کی تقسیم، کشمیر سمیت تمام مسائل حل کرنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اپنایا جائے گا۔ امریکی صدر کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے جنگ بندی کے لیے کردار ادا کیا۔ دوست ممالک نے پاکستان کا ساتھ دیا جس کے لیے ان کا بھرپور شکر گزار ہوں۔ پہلگام واقعہ کو بہانہ بنا کر بھارت نے ہم پر بلا جواز جنگ مسلط کی۔ دشمن نے جو کچھ کیا وہ بزدلانہ اور شرمناک فعل تھا۔ یہ صریحاً کھلی جارحیت تھی۔ ڈرون حملوں اور میزائلوں سے معصوم جانوں، مساجد اور شہری آبادی کو نشانہ بنا کر ہمارے صبر کا امتحان لیا۔ فوجی تنصیبات اور آبی ذخیروں کو بھی نشانہ بنانے کی ایک ناکام کوشش کی، جس پر ہم نے فیصلہ کیا کہ دشمن کو اسی زبان میں جواب دیا جائے جسے وہ بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، اور ہم نے واضح کر دیا کہ جو ملاقات میز پر ہونی تھی اب میدان جنگ میں ہوگی۔ شاہینوں نے چند ہی گھنٹوں میں بھارتی فوج کی توپوں کو ایسا خاموش کیا جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ دشمن کے فوجی اڈے، اسلحے کے انبار اور ایئر بیسز دیکھتے ہی دیکھتے سب کھنڈرات بن گئے۔ ان کے رافیل ہمارے شاہینوں کے نشانے پر آئے اور اللہ کے فضل سے فیل ہو گئے۔ ہماری یہ کارروائی اس بوسیدہ نظریے کے خلاف تھی جو انسان دشمنی، جارحیت، مذہبی جنون اور تعصب پر قائم ہے۔ یہ ہماری غیرت اور اصولوں کی فتح ہے۔ ہم نے دشمن کے ساتھ وہی کیا جو ایک باوقار قوم کو زیب دیتا ہے۔ یہ افواج پاکستان کی کامیابی کے ساتھ ساتھ پوری پاکستانی قوم کی فتح ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، سپہ سالار بری فوج جنرل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اپنے ہر جری جوان اور ہر افسر کو خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں۔ میں صدر ٹرمپ کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے جنگ بندی کے لیے مخلصانہ کردار ادا کیا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکیہ اور قطر کے علاوہ برطانوی قیادت، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ، چین کے صدر پریزیڈنٹ شی جن پنگ، ان کی حکومت اور چینی عوام کا جنہوں نے پاکستان کی
78 साल तारीख में हर मुश्किल वक्त में किसी भी नफ़े और नुकसान को खातिर में लाए बगैर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। हमने एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर आलमी और इलाकाई अमन और ख़ित्ते में बसने वाले करोड़ों लोगों के मफाद में जंग बंदी की तजवीज़ का मस्बत जवाब दिया है। हमें कामिल यकीन है कि आबी वसाइल की तकसीम, जम्मू और कश्मीर के तनाज़ा समेत तमाम तस्वीयातल मसाइल इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करने के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये दिन अफवाज पाकिस्तान की बेमिसाल बहादुरी को खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जाएगा। पूरी कौम के हौसले और वहदत को सराहने के लिए यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया और पाकिस्तान ने हर महाज पर बरतरी साबित की। हम इस कामयाबी पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें सुरखरू फरमाया। दुश्मन की जारहियत के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल लेकिन मुकम्मल तैयारी के साथ अपने दिफा को यकीनी बनाया। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कौम इनके शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान भारत फौरी और मुकम्मल तौर पर जंग बंदी पर आमादा। अमरीकी सालसी में तवील बातचीत के बाद दोनों ममालिक मुत्तफ़िक़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक ने दानिशमंदाना फैसला किया। दोनों ममालिक को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मामले पर तवज्जो देने पर दोनों ममालिक का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान फौरी तौर पर और भारत फौरी तौर पर मुकम्मल तौर पर जंग बंदी पर आमादा। अमरीकी सालसी में तवील बातचीत के बाद दोनों ममालिक मुत्तफ़िक़ हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि दोनों ममालिक ने दानिशमंदाना फैसला किया। दोनों ममालिक को मुबारकबाद पेश करता हूं। मामले पर तवज्जो देने पर दोनों ममालिक का शुक्रगुजार हूं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़फायर हो गया। दोनों ममालिक ने फौजी कार्रवाई रोकने पर मुफाहमत की। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का सोशल मीडिया पर बयान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़फायर हो गया। वज़ीर ख़ारजा जो कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उनकी जानिब से सोशल मीडिया पर यह बयान दिया गया है। दोनों ममालिक ने फ़ौजी कार्रवाई रोकने पर मुफाहमत की है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़फायर हो गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने सोशल मीडिया पर यह बयान दिया है। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। मैं शहबाज शरीफ और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है। पाकिस्तान अपना दिफा करना भी जानता है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान और भारत की जानिब से फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया गया। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिशें की हैं। पाकिस्तान ने अमन की काविशों में अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर कभी समझौता नहीं किया है। पाकिस्तान जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा कि भारतीय खिलाफ वर्जियों के बावजूद पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा है, जबकि जंगबंदी के निफाज से मुताल्लिक उमूर राब्ते के जरिए हल होने चाहिए। मैदान में मौजूद फौजी दस्तों को भी तहम्मुल से काम देना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। भारत को हसीमत उठाना पड़ी। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से जवाब मिलने के बाद 4 से 5 ममालिक से राब्ता किया। पाक भारत कौमी सलामती मुशीरों की मीटिंग में पाकिस्तान में दहशतगर्दी, सिंतास मुआहदे और कश्मीर पर भी बातचीत होगी।
प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था, हमारी कामयाबी को दुनिया तस्लीम कर रही है और उन्होंने भारत का साथ नहीं दिया। अमरीका का सीज फायर में बड़ा किरदार है। पाकिस्तान की स्ट्राइक्स के बाद भारत ने अमरीका, सऊदी अरब और ईरान से राब्ता किया। तस्लीम कर रही है, इवन जो भारतीय मीडिया है वो भी इस बात को तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान की जो अपर हैंड रहा है, सुप्रीमेसी रही है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में, डिप्लोमेसी भी है। नहीं, मैं इसमें ब्रॉडर इश्यूज में ट्रीटी भी डिस्कस होगी और कश्मीर भी डिस्कस होगा और साथ जो है ये हम दहशतगर्दी को भी डिस्कस करेंगे। किसी मुल्क ने भी, एक मुल्क ने भी दुनिया में खुल के हमायत नहीं की हिंदुस्तान की। ये हमारी तो कामयाबी है ही, लेकिन हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शिकस्त है। जब उन्होंने सारे पत्ते अपने खेल लिए और उनको मात हुई तो फिर उन्होंने वेलकम किए एफर्ट्स जो हैं सऊदी अरेबिया का भी, ईरान का भी, अमेरिका का भी। अमेरिका का बड़ा रोल है इसमें। ये पैगाम जो है ये तो मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट थे ना, मेनली जो है ये फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम आते रहे हैं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के जो है अमेरिका से, सऊदी अरेबिया से, यूएई से, टर्की से, इन सारे ममालिक के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं।